Hey there, welcome back. So this is Ramandeep Singh, and let's start with a problem today. So today we're going to be solving this problem, which is sum root to leaf numbers. है ना? This is a neat code like medium problem. I'm going to be solving this problem. So let's start with the problem statement. We have been given the root of a binary tree containing digits from 0 to 9 only. Each root to leaf path in the tree represents a number. For example, the root to leaf path is 1, 2, 3 represents a number 123 है ना. So we have a root and then we have a tree. So if every path represents a number, ठीक है. Return the total sum of all root to leaf numbers. Test cases are generated so that the answer will fit in a 32-bit integer. So what we have to do is to find all the numbers in all those paths and add them up and finally return that answer. ठीक है. और टेस्ट केसेस कुछ इस तरह से हैं इसमें. द टेस्ट केसेस हैव बीन जनरेटेड इन सच अ वे दैट the answer will never exceed 32 bit. So you know, like in a 32 bit we have 32 bits in binary representation. In 64 bit we have 64 bits in binary representation. So the number cannot be larger than the number such that the number can be can go up to, like, cannot exceed 32 bits. Let's say I have some number x, assume it to be the maximum given in the test cases. It will never exceed, so its binary representation will never require 33rd bit in order to represent it in binary format. ठीक है, that is what this line means. अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे. एक टेस्ट केस लेके समझते हैं कि इसमें एक्चुअल में करना क्या है ना. तो लेट्स मूव टू द बोर्ड. एक्सेल लीड्रो. ठीक है, ठीक है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो द एग्जांपल इज दिस. ये वाला लेते हैं 495 and then we have 1 and then we have 0. ठीक है. So let us see. So let's say we have path. So we have this path, and then this is nothing but 495, and then we have this path, and this one, this is 491, plus then we have this path, it is 40. तो नंबर तो यही बन रहा है ना, 495 491 40. So what's the sum? 5 plus 1 6, 6 plus 0 is 6, 9 plus 9 18, 18 plus 4 22 का 2 आ गया. 4 plus 4 8, 8 plus 2 10. 1026 is the answer for this particular tree. Now if you are following this series, then you must have a you must have got some idea of how the solution will look like. So all you have to do is just to, like, write a function which, like, it's nothing but DFS traversal है ना, क्योंकि हमें deep down जाना है. Like we have to move, so we have to start from a particular node, and that node is this root node है ना. रूट से स्टार्ट होने वाले सारे पाथ चाहिए लीफ तक जाने वाले. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो जस्ट मूव डीप अप अंटिल द लीफ, फिर दोबारा डीप जाना है, फिर दोबारा डीप जाना है. सो फॉर दैट वी विल यूज डेप्थ फर्स्ट सर्च. इसलिए इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं, है ना. सो लेट्स सी हाउ द डेप्थ फर्स्ट सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज गोना लुक लाइक. सो लेट्स क्रिएट अ DFS फंक्शन. It takes in this node, and what it returns is, gives me the answer for the tree. So what is the answer? Gives me the sum of leaf to, no, not leaf, node to, sum of node to leaf numbers, sum of node to leaf numbers. यही देता है ना, sum of node to leaf numbers for the tree rooted at
node. ठीक है, then what will be the answer for this? हाँ सॉरी, तो ये फंक्शन हम कॉल करेंगे फॉर द रूट नोड. वी विल कॉल दिस फॉर रूट एंड इट्स गोना रूट ऑफ द ट्री विच वी हैव बीन गिवन इन द टेस्ट केस. तो ऑल वी हैव टू डू इज़ देखते हैं इस फंक्शन काम कैसे करेगा, है ना. तो एक तो यही है कि अगर लेट्स से वी हैव एन एम्प्टी ट्री, है ना. एक तो ये होगा इफ़ नोड इज़ नन, इफ़ नोड इज़ नन, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? कुछ नहीं रिटर्न करना, वी विल जस्ट रिटर्न, कुछ नहीं करना. नहीं तो फिर हम, अगर नोड नन नहीं है तो इसका मतलब उसमें कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू है, और उस वैल्यू को हम लेट्स से, सो व्हाट द सॉल्यूशन, द अप्रोच इज द हाउ द अप्रोच इज गोइंग लुक लाइक इज all we have to do is just keep moving along a path. Let's say we start from here, now move to the left, come here, then move to this, come here, and as we are moving down, keep generating the number, like here generate 4 and then 4 and then add this 9 and then move down and add this 5 as well. So 495 is what you're gonna add. So this is what is going to be your answer. ठीक है, समझ आ गया? यही करना है. देन फिर 491, 4 9 एंड देन 1. तो कैसे करना है इसको? 4 फिर उसमें 9 ऐड कर दो, फिर उसमें 1 ऐड कर दो. समझ आ गया? ठीक है, ओके ओके. अब देखो, नोड इज़ नन तो रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे? अदरवाइज व्हाट यू गोना डू? फिर डाउन द लाइन आना है, तो वी नीड एन आंसर, वी नीड अ लाइक एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा जो इन चीज़ों को एक्यूमुलेट करता जाएगा. तो 4 को उठाया, फिर 9 को उठाया, फिर 5 को उठाया, है ना. लेट्स कॉल दैट वेरिएबल टू बी करंट. अगर नोड नन नहीं है तो उस वेरिएबल में हम इसको ऐड कर देंगे. कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले उसमें वी आर गोना मल्टीप्लाई दैट विद 10 और फिर उसमें अपने ऐड कर देंगे करंट नोड की वैल्यू को. ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज सपोज टू बी. अब वंस दैट नोड हैज़ बीन एडेड टू दैट करंट वैल्यू मूविंग डाउन वाइल वी आर मूविंग डाउन द लाइन, तो क्या होगा? तो क्या होगा? हाँ, तो फिर तो वही है कि एज वी आर मूविंग डाउन दैट पर्टिकुलर लीफ, दैट पर्टिकुलर ब्रांच, है ना, तो एक्यूमुलेट करते जाएंगे नंबर्स को. सो वंस वी आर डन डीलिंग विद द करंट नोड, व्हाट वी गोना डू इज वी गोना मूव टू द लेफ्ट. तो हम लेफ़्ट पे मूव करेंगे, बट उससे पहले हम चेक करेंगे कि कहीं हम लास्ट लीफ नोड पे तो नहीं पहुंच गए, है ना. हो सकता है हम यहाँ पहुंच गए. अगर हम यहाँ पहुंच गए तो मेरे पास आगे जाने का कुछ रास्ता ही नहीं है. तो फिर तो मेरा आंसर बन चुका है ना. कि मतलब इसका मतलब ये है मैंने एक ब्रांच के लिए आंसर निकाल लिया, मतलब मैंने नंबर बना लिया 495. अब मुझे इसको फाइनल आंसर में ऐड करना है, यही चाहिए ना. तो फाइनल आंसर के लिए एक अलग वेरिएबल लगेगा, तो लेट्स कॉल इट आंसर. तो फिर मैं चेक करूँगा अगर जो करंट नोड है वो कहीं लीफ तो नहीं है. अगर ये नन है तो साथ ही साथ राइट भी नन है, इन दैट केस व्हाट गोना डू इज, उस केस में हम आंसर में ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? इस करंट को. दैट्स ऑल, और कुछ? बस हो गया. फिर अगर ये लीफ नोड नहीं है ना, तो उस केस में हम करंट नोड से लेफ़्ट मूव करेंगे पहले. सेल्फ डॉट DFS, अच्छा मैं कोडिंग की लैंग्वेज में नहीं लिखता अभी फॉर नाउ. DFS नोड डॉट लेफ्ट, लेट्स राइट द सूडो कोड ओनली. लेफ़्ट में जाएंगे, फिर लेफ़्ट वाला जब एक्सप्लोर हो गया फिर यहाँ उसी नोड पे आ गए, फिर वहाँ से राइट में जाएंगे.
और इस तरह से हमारा फंक्शन काम करेगा। ठीक है, कूल है। दिस इज योर सोल्यूशन। चलते हैं इसको कोड करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द सिंपल वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको कोड करते हैं। लेट्स कॉल इट डी एफ एस फंक्शन। नोड पास किया, फिर मैंने एक करंट वैल्यू भी पास करनी है ना। अच्छा, क्योंकि ये पाइथन है तो सेल्फ भी होगा यहाँ पे। तो इफ़ नोड इज़ नन, जूम करते हैं। ठीक है, इफ नोड इज़ नन रिटर्न, और अच्छा इसमें कुछ है ही नहीं, और अगर नहीं है तो क्या करेंगे? what you're gonna do is हाँ, फिर इसको एक्यूमुलेट करेंगे ना। करंट इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस नोड डॉट वैल्यू। अब अगर ये लीफ कंडीशन, इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नन एंड नोड डॉट राइट इज नन, इन दैट केस वी गोना रिटर्न, नॉट रिटर्न, वी गोना लेट्स से एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पे। सेल्फ डॉट आंसर 0 कर दिया, तो इसको सेल्फ डॉट आंसर में हमने करंट को ऐड कर दिया। एंड फिर क्या करेंगे? यही करना है और तो कुछ ना है। सेल्फ डॉट डी एफ एस, फिर नोड डॉट लेफ्ट, और इसमें करंट पास किया। सेल्फ डॉट डी एफ एस, राइट, इसमें करंट पास किया, हो गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे कि इसको कॉल करेंगे डी एफ एस को। रूट पास किया, सेल्फ डॉट डी एफ एस, नॉट सेल्फ डॉट डी एफ एस रूट। ठीक है, ठीक है, सेल्फ डॉट डी एफ एस रूट, और फिर क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे ये सेल्फ डॉट आंसर। ठीक है, गॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एंड आई होप यू गॉट द सोल्यूशन, कैसे हमने इसको सॉल्व किया। और इफ़ यू लाइक, इसमें कुछ अलग नहीं किया हमने, वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। लेफ़्ट जाओ, डी एफ एस सी है, जाते जाओ, जैसे लीफ मिला बैक ट्रैक करो, फिर राइट साइड जाओ, लीफ मिला बैक ट्रैक करो, फिर ऊपर जाओ, फिर बैक ट्रैक करो, दैट्स ऑल। तो इसके सिमिलर क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व, जैसे पाथ सम में तो किया हुआ आई थिंक। बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम, ये सॉल्व कर सकते हो। ये आई थिंक इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, ये वाला सॉल्व करो, स्मॉलेस्ट स्टार्टिंग स्ट्रिंग फ्रॉम लीफ नोड। एंड इट विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम in the next video. Till then, bye bye.